ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। परम पूज्य सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी और हमारे गुरु परंपरा के चरणों में साष्टांग प्रणाम अर्पित करके आज का कार्यक्रम सभा प्रारंभ प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। दक्षिणास्य समारंभाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करलोकशरणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुआनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय शंकर। आज के संपर्क कार्यक्रम में आप सभी साधकों का हार्दिक स्वागत है। अब मैं श्री चित्रापुर मठ के स्थायी समिति के अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि वे सभी साधकों को संबोधित करें। स्वामीजींगल्ले परमचरणांक वंदन करनो हाव पगले स्पीच सुरू करता। श्री ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। On 3rd March 2021, when I spoke about beginning of an auspicious period of 15 months, which started on 3rd March and which will culminate on 15th of June 2022, what we called as the Sanyojam Sanyojam is the program. I had spoken about performing the Brahma Kalash Utsav or the ceremony starting from 15th of January to 19th of January. Just to tell you very briefly, Brahma Kalash is generally performed once in every 24 years. It is a very intense procedure involving several Vedic rituals, culminating in the Abhisheka of the Lord Bhavani Shankar by the sanctified waters of the 1000 Kalashas. It is mainly to purify the atmosphere of the temple and compensate all the mistakes which we might have made in our pujas, or remove the impurities, ashuddhi, etc. by the devotees. It is therefore important because the Daivic power of the Devata henceforth has to shine going forward more strongly. It is with this intention that we are going to perform all the Brahma Kalasha Utsav from 15th of April 2021. There are basically 3 Yajmans in 3 categories. One is the Pradhan Yajman for the Pradhan Kalash, and I'm happy to mention this, that our Ashok Chandavarkar Mam has agreed to become the Pradhan Kalasha Yajman, and I really thank Ashok Mam to accept this request from our side and agree to become the Pradhan Yajman for this Pradhan Kalash. There is the second category called Dravya Kalash, which is about 25 Kalashas that we will have, and I would request 25 Yajmans to come forward and contribute towards performing of this Brahma Kalasha Utsav. The expenditure which is going to be incurred for this program will be kind of financed or met with
or met through this kind of a contribution by the Yajmans of 3 different categories. So Dravya Kalash, the contribution requested is 2.5 lakh rupees. And then there is a third Kalash, which is called the Varuna Kalash, which is expected to be contributed by 983 Yajmans. The cost of this will come to 5,000 rupees per Kalasha. And I am requesting all the devotees or sadhakas of our mutt as well as others to contribute towards this Varuna Kalasha, towards meeting these expenses. Of course, they will get the Kalasha through which this puja will be performed as the prasad from Swamiji or from the mutt. So this is the small announcement I wanted to make. Today we have assembled on this 14 March, or the first day of the Shukla Paksha of Falgun Mas or month, as a part of the assembly of Samparka, which is basically to listen to the Ashirvachan which will be delivered by our Swamiji. The special occasion of today is that this will be performed, or this Samparka will be in Hindi language. The whole idea was basically कई दिन पहले हमारे जो आदरणीय जो हमारे मित्र हैं, जो जोधपुर समाज सारस्वत समाज के रामकिशोर ओझा हैं और बीकानेर सारस्वत समाज के संपत सारस्वत हैं, तो उन्होंने हमसे विनती की थी कि हम हमारे जो परम पूज्य सद्योजात श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी हैं, उनका आशीर्वचन सुनना चाहते हैं। अभी ये जो कोविड महामारी के दिन है, तो प्रत्यक्ष ऐसी मुलाकात तो हो नहीं सकती, ऐसी मीटिंग नहीं हो सकती, ऐसा कुछ एक संबंध भी नहीं आ सकता कि स्वामी जी को मिले, अगर इधर इन शिराली मिले या कहीं जगह मिले तो हो नहीं सकता। तो ये जो वर्चुअल ये जो संपर्क का ये हमारा आज का कार्यक्रम है, तो उन्होंने विनती की हमें कि ये कार्यक्रम अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब मैंने स्वामी जी से ये जो इनका जो सुझाव आया था, तो मैंने जब स्वामी जी से जो विनती की, तो स्वामी जी ने तुरंत इनकी विनती को मान्य करके ये 14 मार्च का ये जो दिन है उसका ये फाइनल किया, और इसीलिए आज ये समारंभ में हम सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो मैं रामकिशोर ओझा जी की एक इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। रामकिशोर ओझा जो है हमारे जोधपुर सारस्वत समाज के नेतृत्व कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष हैं। मैं उनसे पूछ रहा था कि ये जोधपुर का आपका सारस्वत समाज कितना पुराना है, तो बोल रहे थे कि उनको भी याद नहीं है, 100 साल से भी ज़्यादा है और शायद और भी ज़्यादा पुराना होगा। तो वो उनके समाज के वो नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरे हमारे हैं संपत सारस्वत जी। संपत सारस्वत जी बीकानेर के सारस्वत समाज के प्रतिनिधि हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। और ये दोनों का जो संबंध है, ये कुछ 5 या 6 साल पहले हमारे संबंध आ गए, हमारे स्वामी जी के संबंध आ गए। तो जो हमारा अभी जुड़ाव हुआ है ये 5 या 6 साल में, तो बहुत अच्छी तरफ से हो रहा है। एक तो 2017 में बीकानेर में स्वामी जी का कैंप हुआ था, जो हम कहते हैं शिविर हुआ था, और बाद में अक्टूबर 2019 में जोधपुर में भी एक शिविर हुआ था। बहुत अच्छी तरह से ये दोनों शिविरें हुई थी और ऐसे ही होते रहेंगे। और मेरे ख्याल में हमारे जो सारस्वत समाज है वो सिर्फ चित्रापुर सारस्वत या कोंकणी भाषिक सारस्वत से ही सिर्फ नहीं है। हम जो सारस्वत समाज जो बहुत बड़ा है, बहुप्रांतीय, भारतवर्ष के बहुप्रांतिक ऐसे समाज हुआ है हमारा सारस्वत समाज, और उनका और हमारा जुड़ाव गत 5 या 6 साल से जुड़ा हुआ है और ऐसे ही जुड़ा रहेगा, ऐसी मेरी भावना है और ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो आज के ये समारंभ में जो संपर्क समारंभ है, तो मैं पहले
हमारे जो रामकिशोर जी हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि एक 2 या 5 शब्दों में वो बोले और अपना परिचय दे दे। और परिचय तो वैसे मैंने दिया है, लेकिन जो उनकी जो भावना है, जो संपर्क, ये जो समारंभ के लिए जो उन्होंने विनंती की थी, जो उनकी भावना है, उसका वो संक्षिप्त में उसके बारे में बात करें। रामकिशोर जी। हाँ, परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में सारस्वत ब्राह्मण न्याय समाज सोसाइटी जोधपुर के सभी परिवारों की ओर से वंदन प्रणाम। स्वामी जी, हम अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं, हमें ज्ञान का प्रकाश चाहिए। हम तामसी प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं, हमें सात्विक प्रवृत्ति का एहसास चाहिए। हम राह भटक रहे हैं, हमें सही राह पर लाने वाला होना चाहिए। हम विभिन्न भागों में बटे हुए हैं, हमें एक सूत्र में पिरोकर बांधने वाला होना चाहिए। हमें संस्कार, शिक्षा, ज्ञान और हमारी प्राचीन परंपराओं का निर्वहन हम और हमारे परिवार कैसे करें, ये आशीर्वाद आपसे हमें चाहिए। हमारे पास आपको कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। वी डोंट हैव द वर्ड्स टू पे और ग्रेटिट्यूड टू परम पूज्य स्वामी जी महाराज। आपने 2019 अक्टूबर में जोधपुर में 5 दिन रहकर जो ज्ञान की गंगा बहाई थी, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। उस ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। आपका आशीर्वाद आज भी हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने को तत्पर रहता है। हम चाहते हैं आप निरंतर, आपका हमें आशीर्वाद मिलता रहे और आपके वचन से, आपकी वाणी से, आपके उद्बोधन से हम लोग इतने लाभान्वित हो, आपकी ज्ञान की गंगा हमारे परिवारों पर बहती रहे और वो सही रास्ते पर चले, वो हमारी भारतीय संस्कृति का निर्वहन करे और हमारे जो कर्तव्य है कभी कर्तव्य से विमुड न हो। इस प्रकार का आशीर्वाद हम आपसे चाहते हैं। हम यहाँ कोई उद्बोधन देने के लिए नहीं है, हम तो आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन और आपका रास्ता बताने वाला प्रेम, उस प्रेम की गंगा में बहने के लिए हम बैठे हैं। हम चाहते हैं कि आपका निरंतर इसी प्रकार हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। हम आपके श्री चरणों में हमेशा प्रणाम करते रहें और आपके चरणों की रज हमारे सिर पर रखकर हमारे पूरे सारस्वत ब्राह्मण न्याय समाज जोधपुर को ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जा सके। यही मेरा वंदन, यही मेरा अनुरोध। हम आज बहुत हर्षित हैं, पुलकित हैं, पल्लवित हैं। हम कितने आनंद में हैं, उस आनंद की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि स्वामी जी महाराज आज हमें संबोधन करने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। स्वामी जी का पुनः जोधपुर सारस्वत ब्राह्मण समाज की ओर से पुनः बार बार अभिनंदन, प्रणाम। आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, ऐसी कामना। थैंक यू रामकिशोर जी। मैं अभी संपत जी से प्रार्थना करता हूँ, विनंती करता हूँ कि वो एक आपके भी विचार एक 3-4 शब्दों में बताइए। जय शंकर। स्वामी जी के चरणों में सादर प्रणाम। मैं संपत सारस्वत, बीकानेर सारस्वत समाज और तमाम सारस्वत समाज की तरफ से परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में सादर वंदन करता हूँ। और सबसे पहले इस पल को प्रणाम करता हूँ, जिस पल को आप सबके माध्यम से हमारे बीच में आज आनंद का मौका जो पूरी टीम ने दिया है कि पिछले 13 महीने से हम पूर्ण रूप से कट से हो चुके थे। बार बार हम मठ पे फोन कर रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या हम आ सकते हैं क्या, लेकिन कोविड की मद्देनजर हमें आने के लिए रोका जा रहा था। लेकिन 13 महीने के बाद आज पहली बार परम पूज्य स्वामी जी को साक्षात हमारे सामने देखकर सच में भाव विभोर हैं और स्वामी जी के चरणों में वंदन करते हैं। चाहे 2017 का फरवरी का आयोजन हो या भले ही दिसंबर 2019 का आयोजन, जिसमें बीकानेर से 250 से ज्यादा साधक सिराली गए थे, तब से लेकर पूरे बीकानेर क्षेत्र में परम पूज्य स्वामी जी तथा बड़े गुरुदेव को लेकर जो जागृति लोगों के अंदर आई है, जो भावना और जो इमोशंस जो स्वामी जी से जुड़े हैं, वो सच में परम पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद और उनकी कृपा से ही सब हो रहा है। मैं आप सबके माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि अभी थोड़े दिन पहले बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में टुकरिया सर मंदिर के अंदर सरस जी महाराज का एक मंदिर स्थापित हुआ है और वहां पर बहुत बड़ी संख्या में 5 से 10 हजार लोग इकट्ठा हुए। वहां पर भी
परम पूज्य स्वामी जी के पोस्टर लगे और परम पूज्य स्वामी जी के बारे में लोगों ने जानने के लिए और मठ परंपरा से जुड़ने के लिए, गुरु परंपरा से जुड़ने के लिए सबने अपनी इच्छा व्यक्त की। और आज ही मैं जयपुर में सारस्वती युवा मंडल की एक आयोजन के अंदर रक्तदान शिविर के अंदर मैं शामिल होकर आ रहा हूँ। वहां पर भी इस बारे में बात हुई। इस उत्तर भारत की तरफ अगर राजस्थान का चाहे जोधपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे नागौर हो या जयपुर ही क्यों ना हो, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति परम पूज्य स्वामी जी से परिचित है और मठ से भी और गुरु परंपरा से भी जुड़ना चाहते हैं। और मैं सादर वंदन करता हूँ। वो दिन मुझे आज भी याद है, 24 जनवरी 2016 का दिन जो था, जहां पर गोवा में सारस्वत समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन से लेकर मार्च 14 2021 तक का जो सफर रहा है, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए ही नहीं, पूरे सारस्वत समाज और खास तौर पर जो मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं अंधकार में रोशनी दिखने जैसा कार्य परम पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से हुआ है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं माध्यम बना हूं और आज इस प्लेटफॉर्म पे अगर मुझे मौका मिला है तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत बड़ा पुण्यशाली और भाग्यशाली समझ रहा हूं कि कहीं ना कहीं मैं उन लोगों का माध्यम बना जिन लोगों के जीवन में गुरु के नाम का अंधकार था। और आज जब मैं कहीं से गुजरता हूं, मैं मेरे समाज के बीच में से निकलता हूं, तब मुझे उसी भीड़ में से कोई व्यक्ति आकर जय शंकर कहता है तो मुझे ऐसा फील होता है और मैं फट से पूछ बैठता हूं, आप यात्रा में थे क्या? आप शिविर में आए थे क्या? तो परम पूज्य स्वामी जी को लेकर, जय शंकर को लेकर जिस प्रकार से लोगों के बीच में जो भावनाएं हैं, जो जुड़ने की भाव है, उन सभी भावनाओं को मैं सादर वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैं स्वामी जी के चरणों में पूरे मेरे जितने भी परिचित हैं, जितने भी लोग मेरे माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी से जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं, उन सब की तरफ से परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए एक बार फिर आग्रह करूंगा कि जैसा मैंने बीकानेर जब आप पधारे थे, तब मैंने आपसे आग्रह किया था कि पूरे दिन के 24 घंटे में एक सेकंड, केवल एक सेकंड आप बीकानेर के हम सब लोगों के लिए दीजिएगा। मैं पुनः आग्रह करूंगा कि आपने वादा किया था, उस वादे को आप ना भूलते हुए दिन के एक सेकंड का समय हम सब पे आशीर्वाद और कृपा बरसाने में लुटाएं और हम सबको कृतार्थ करें। हम सब आपके चरणों में वंदन करते हैं, कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। भाववश हमसे कोई गलती होती है तो उसे माफ करिए, लेकिन भावनाओं से हम सब आपसे जुड़े हुए हैं। आप सबका आशीर्वाद हम पर है और आपकी कृपा बनाए रखें। जय शंकर। धन्यवाद ओझा जी और संपत जी, आपके विचार रखने के लिए। अब मैं श्री दिलीप माविनकुरे जी, जो श्री चित्रापुर मठ के स्थायी समिति के उपाध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि वे सभी साधकों को संबोधित करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री भवानी शंकराय नमः, श्री मात्रे नमः। परम पूज्य स्वामी जी के कमल चरणों पर मेरे प्रणाम रखते हुए अनुमति चाहता हूं। इस कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी दर्शकों, साधकों, पार्टिसिपेंट्स और स्वयं की ओर से आज के इस संपर्क के लिए परम पूजनीय स्वामी जी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। कोविड प्रतिबंध के इन दिनों में परम पूज्य स्वामी जी की उपस्थिति वर्चुअल क्यों न हो, उनके संपर्क से उपदेश एवं भजन सुनने से हम सबको बहुत आनंद, शांति और सुकून जरूर मिलेगा। स्वामी जी, वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस संपर्क 3। मैं आदरणीय श्री रामकिशोर ओझा जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद खुशी से इस संपर्क में भाग लिया और उनके हर्ष की बातचीत की। ट्रूली ग्रेटफुल टू यू रामकिशोर जी। इस संपर्क में आज हमसे जुड़ने के लिए आदरणीय श्री संपत सारस्वत जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। व्यस्त रहने के बावजूद संपत जी ट्रैवल भी कर रहे थे बहुत, लेकिन आए हैं इसलिए, और सारस्वतों के संगठन के लिए जिस काम पे वो बहुत निष्ठा से काम कर रहे हैं,
उसके लिए मैं आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच संपत जी फॉर योर प्रेजेंस and for your impassioned plea to His Holiness to go back to Bikaner once. श्री चित्रापुर मठ के प्रशासन की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी जो इस लाइव संपर्क को देख रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप ऐसे लाइव संपर्क कार्यक्रम आगे भी करें, ऐसा अनुरोध स्वामी जी से करना चाहेंगे। मैं आपकी ओर से स्वामी जी को यही प्रार्थना करता हूं, जब आप बिना किसी कठिनाई से यात्रा कर सकते हैं तब आप सभी शिराली मठ जरूर पधारें और सभी शाखाओं की यात्रा करें। जब आप आते हैं तो कृपया चित्रापुर मठ के विभिन्न संबंधित संस्थाओं जो सामाजिक कार्यों में सोशल ऑब्जेक्टिव से संस्थापित किए गए हैं उनको जरूर देखें। ज्यादातर संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में हैं और एक महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में। आपको उनके बारे में अधिक जानकारी हमारे वेबसाइट पे मिलेगी, आप जरूर देखिए। इस लाइव कार्यक्रम को आप सभी के पास लाने के लिए हमारा वेबसाइट टीम के सभी सेवाकर्ता भाई बहनों की कड़ी मेहनत की मैं सराहना करता हूं। थैंक यू वेबसाइट टीम फॉर दिस। परम पूज्य स्वामी जी की प्रणाम और सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं देते हुए I request Praveen Ma'am to invite His Holiness to address us. Jai Shankar. Thank you, Dilip Ma'am. So, with this, Swamiji, may I request you to bless us with your Ashirvachan. We are eagerly waiting for that. So, please, Swamiji. Mahadev. आनंदाश्रम शिष्याग्र्यं स्वानंदाम्बुधिमज्जितम् आनंदाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। महादेव महादेव। बड़ी प्रसन्नता हो रही है आप सबों को देखकर। हम समाज के प्रतिनिधि हैं तो आपको देखते ही उन क्षणों का स्मरण होता है। हम बीकानेर आए थे, जोधपुर में भी मिलना हुआ था सारस्वतों से। बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, खूब सत्संग हुआ। और अब यहाँ पे इस माध्यम से वर्चुअल संपर्क और दृढ़ करने का ये प्रयत्न कर रहे हैं। 2016 गोवा में जो हुआ था कार्यक्रम, विश्व सारस्वत सम्मेलन, क्यों संपत जी दिखाई नहीं दे रहे? संपत, हाँ देखो, तो आप आए थे 2-3 सारस्वत बीकानेर से, फिर उसके बाद बस पीछे पड़ गए। फिर यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के लिए पहुंचे शिराली, फिर कारला में भी आए, तो बड़ी खुशी हो रही थी। फिर याद है आपको किस प्रकार से आपने बीकानेर हमें प्रोत्साहित किया आने का? कुछ फोटोज बताई आपने, उसमें बड़े महाराज जी, नरसिंहगिरी जी महाराज, उनकी फोटो थी। तब मैं पहचान गया। तो आपने कहा वो स्थल है एक, उस लोभ में मैं वहां पे आया। फिर आप लोगों से मिलना हुआ, बहुत अच्छा रहा। और पिछले वर्ष 13 महीने हुए, कितने 150-250 लोग आए बीकानेर से। अच्छा रहा ना? बाद में कैसे रहा? ठीक रहा, अच्छा ही रहा कह सकते हैं। उस प्रकार के संपर्क की आवश्यकता रहती है। ये जो हम अभी संपर्क
संपर्क कर रहे हैं। ये एक आपातकालीन परिस्थिति में आने जाने पे निर्बंध होने के कारण इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। पर सचमुच संपर्क तब होता है, संपर्क से ज्यादा, जब आप ऐसे एक स्थल पे आते हो, जैसे मठ में आए, यहाँ की जो एक स्पंदन है उससे लाभान्वित हो, यहाँ की वो जो दिव्यता है, बस 3 दिन भी रुके तो जाके आपके शरीर पे, मन पे उसका प्रभाव पड़ने लगता है और तब जाके सचमुच लाभ होता है। तो इस संपर्क को लेकर, हाँ अभी क्यों शिराली चलना, ऐसे नहीं किसी को लगे, आना तो आना ही होगा। वैसे ही पिछले साल हम गए थे जोधपुर, वहाँ पे संबित साधनायन में नवरात्रि, संबित धाम नवरात्रि मनाई और फिर 5 दिन का कार्यक्रम हुआ। जोधपुर के सारस्वतों ने बड़े प्रेम से आयोजित किया था। अब उनका भी संपर्क 1 साल पहले हुआ था, 2018 मुंबई में जो एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, विश्व सारस्वत सम्मेलन। वाज इट 2018 प्रवीण मैम? 18 जनवरी। यस। तो वहाँ पे घनश्याम ओझा जी आए थे, तो उन्होंने निमंत्रण दिया, तो वहाँ पे हम जोधपुर भी गए। अब इस संपर्क का बहुत आग्रह था, कई दिनों से संपत सारस्वत जी पूछ रहे थे, हिंदी में भी क्यों न हो, हिंदी हो, मराठी हो, कोंकणी हो, हमें तो इस यंत्र से बहुत डर लगता है, इसीलिए हम जरा संकोच कर रहे थे। पर फिर रामकिशोर जी ओझा ने भी एक निवेदन किया। जोधपुर से एक साधिका माता जी आई थी, उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ हो सके तो अच्छा है, तो बस हो गई बात। अभी आप लोगों से फिर से मिलना हो रहा है और आपके माध्यम से कई सारस्वतों से। जैसे अभी बताया हमारे प्रेमास्पद प्रवीण कडले जी ने, सायुज्यम नाम का एक कार्यक्रम इस वर्ष भर आयोजित किया है समाज ने। सायुज्यम, वैसे हम स्मार्थ हैं। आदि शंकराचार्य हमारे गुरु, उनका सिद्धांत जो है द्वैत सिद्धांत है हमारा सारस्वतों का, तो उसमें मुक्ति, कैवल्य मुक्ति की बात होती है। मैं अपना वास्तविक स्वरूप समझ लूं, अपने शिव भाव में, अपने ही ब्रह्म स्वरूप में मेरा मन लीन हो जाए, मैं एक ये जीव हूँ, दुखी हूँ, कभी कभी सुखी हूँ, इस ये भ्रांति से, अज्ञान का नाश करके अपनी ही स्वरूप में प्रतिष्ठित हूँ, उसको मुक्ति कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत वैराग्य चाहिए, बहुत उपासना की आवश्यकता रहती है। गुरु का मार्गदर्शन ही नहीं, गुरु की सतत सेवा करते हुए एक साधक जो है शिष्यत्व को प्राप्त होता है और फिर जाके ये आत्मज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ये संभव है जिससे मुक्ति मिले। पर साधकों को प्रोत्साहित करने के लिए, उपासकों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे आचार्यों ने इस मुक्ति में एक क्रम सा भी बताया है। याद रखिएगा, मुक्ति में कोई स्टेजेस नहीं रहते। कैवल्य मुक्ति ज्ञान है या तो नहीं है, थोड़ा सा है, 50% ज्ञान है, 70% ज्ञान है, ऐसे हम स्वीकार नहीं करते। पर जो उपासक है उनके लिए बताया गया है, शास्त्र में बताया गया है कि सारूप्य इत्यादि मुक्तियां, 4 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। ऐसे शरीर का पात होने के उपरांत अपनी उपासना के बल से एक व्यक्ति अपने इष्ट देवता के लोक को पहुंचता है, उसी का रूप धारण करता है, उसका सामीप्य मिलता है, एक सहजता, उसका वात्सल्य मिलने लगता है। और यदि वैराग्य और उपासना से उसका जीवन यदि व्यतीत हुआ हो तो फिर जाके उसको सायुज्य मुक्ति मिलती है। सायुज्य मुक्ति यानी वहां पे ऐक्य हो जाता है, मैं जीव, ये शिव, ये भावना भी नहीं रहती है उस प्रेम में, और वहां पे सर्व अज्ञान का नाश भी होता है, उसको सायुज्य कहते हैं।
तो ये 4 प्रकार की मुक्तियों की बात करते हुए आदि शंकराचार्य ने, भागवत आदि शंकराचार्य भाष्यकार कहते हैं हम उन्हें, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर रूप से उसको प्रस्तुत किया है शिवानंद लहरी में। कहा है ये सारी प्रकार की 4 प्रकार की मुक्तियां जो है ना, ये तो अगले जन्म में शरीर के बाद के उपरांत की बात है। मुझे उसकी काहे की चिंता? मुझे सारी 4 प्रकार की मुक्तियां तो यहीं पे मिल रही हैं। मैं शिव पूजा करने बैठता हूँ, भस्म धारण करके, रुद्राक्ष माला धारण करके बाहर, और फिर आंतरिक शिव स्वरूप का चिंतन करके मैं शिवो भूत्वा शिवम यजेत, इस विधान का पालन करते हुए मैं शिव की आराधना करता हूँ। सारूप्य मुझे पूजा में ही मिल जाता है। और फिर इस प्रकार से एक एक क्रम से उन्होंने बताया है, इस जन्म में ही मुझे ये सारी मुक्तियां उपलब्ध हैं। मैं भजन करता हूँ तो एक प्रकार का रोमांच होता है, और फिर मैं जब चिंतन करता हूँ, मैं चर्चा करता हूँ अच्छे अच्छे साधकों से, अच्छे भक्तों से, तो फिर मुझे सामीप्य मिलने लगता है भगवान का। और फिर जब मेरा मन समाहित हो जाता है, हृदय में भक्ति परिपूर्ण होती है, चित्त एकाग्र हुआ है, मैं जप में निष्णात हुआ हूँ, तब मैं इस सारे इदंतया में जो देख रहा हूँ, ये संसार करके, इसमें भी चर और अचर रूपी संसार में मैं केवल शिव का ही दर्शन कर रहा हूँ। तो मुझे जीवित होते हुए ही सायुज्य मुक्ति भी प्राप्त हुई है। धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं, इस प्रकार का एक उद्गार उन्होंने व्यक्त किया हुआ है। तो यहाँ पे सायुज्य का हम अर्थ ऐसे ही लेंगे। वस्तुतः ये शब्द समाज ने चुना हुआ है, समाज के प्रतिनिधियों ने, और इस शब्द को लेकर 1 साल का वो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। निमित्त कुछ भी हो, भगवत चिंतन हो, यही मेरी इच्छा है। तो सायुज्य, जितना हम निकट आ पाए उस तत्व का, जितना हम अपने अहंकार को छोड़ने का प्रयत्न करें और उसमें साफल्य भी प्राप्त करें, उतना एक मन में विकास होने लगता है, आत्म शांति मिलती है, और निश्चित रूप से शिव स्पर्श होने लगता है। तो उस सायुज्य की अभिलाषा से हम सब एकत्रित हुए हैं। सारस्वत के नाम पे हो, भगवान की आराधना के नाम पे हो, है ना, इतना तो हम स्वीकार करते हैं। तो इसमें खूब प्रयत्न करना पड़ेगा। अब देखिए, आप लोग जो यहाँ पे आए शिराली, आप लोगों को हम गोकर्ण मल्लापुर भी ले गए थे, याद है ना? गोकर्ण में हमारा आदि मठ है। मल्लापुर एक विलक्षण क्षेत्र है, वहां पे एक समाधि है हमारे पूर्वाचार्यों की, शंकराश्रम द्वितीय कहते हैं। वो सिद्ध थे, योगी थे, और ऐसी उनकी विलक्षणता है कि उनका मार्गदर्शन मिलते रहता है। यानी ये आपको कैसे बताना, गुरु सर्वस्व होए, गुरु के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। साधक शिष्य आराधना करे, गुरु ने बताया हुआ उसका पालन करते हुए उपासना करे, देवता प्रसन्न होकर फल देना चाहे फिर भी गुरु की अनुमति के बिना नहीं दे सकता। ये श्रेष्ठता है उस गुरु शक्ति की। तो गुरु ही मार्गदर्शन करे, रक्षण करे। गुरु के गुरु भी होते हैं परंपरा में, तो उनके भी गुरु होते हैं। प्रायः उनका अनुग्रह बना रहता है शिष्य पे, पर वो सीधा हस्तक्षेप नहीं करते, यदि मैं उस शब्द का प्रयोग कर सकूं। पर ऐसी कोई विलक्षणता है मल्लापुर के शंकराश्रम स्वामी जी के सानिध्य की, कि जब भी कोई समस्या आए परंपरा में तो उनका मार्गदर्शन मिला। मेरे परम गुरु को, परमेष्ठी गुरु को भी मिला था। मुझे 2-3 बार स्पष्ट संकेत मिला। अब अगला चातुर्मास वहीं पे आयोजित हो रहा है। तो वहां पे इस विकट परिस्थिति में, कोविड की परिस्थिति में, हमारे एक बुजुर्ग ज्येष्ठ वरेण्य दुर्गेश चंदावर के नाम के सारस्वत एक रुके हुए थे। कई महीने उनको वहां पे रुकना पड़ा। खूब साधना वगैरह कर रहे थे। उनको उस स्थान से बहुत प्रेम है। वैसे उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, एसपीसी बैंक के डायरेक्टर हैं।
तो वहां पे उनको पता चला कि गर्भगृह में कुछ पानी रिस रहा है। तो यूं ही कुछ टाइल्स ठीक करो ऐसे करने के बजाय उन्होंने यह काम हाथ में लिया और बहुत अच्छी तरह से उस जीर्ण जो हुआ था उसका उद्धार किया। बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट उन्होंने संभाला। तो वहां पे एक नूतन शिखर कलश की स्थापना हुई। उस दिन हम वहां पे गए थे। उस दिन और कुछ संकेत मिले और उन संकेतों के अनुसार हम यहाँ पे इस बार ब्रह्म कलश भी कर रहे हैं, जिसका उल्लेख अभी प्रवीण जी ने किया था। ब्रह्म कलश प्रायः 24 साल में एक बार होता है। तो ये एक संकेत मिला कि अभी करो। देखिए, देवस्थान है, कई लोग आते हैं, लोप दोष कहते हैं होते ही हैं। वैदिकों के हाथों से हो सकता है, गृहस्थों के हाथों से हो सकता है, कुछ गलतियां होती हैं 24 सालों में। तो उन गलतियों का एक परिहार, एक प्रायश्चित रूप से ये ब्रह्म कलश किया जाता है। जो दूषण आया हुआ है उसको निकालने के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम रहता है और फिर उसमें सब सहर्ष भाग लेते हैं। तो उस पुण्य का वो भागी बनते हैं। अपनी उपासना से हो या तो फिर जैसे अभी प्रवीण जी ने बताया था उस प्रकार से भी शामिल हो सकते हैं। तो याद रखिए, 24 साल में समाज में भी एक प्रगति आई हुई है, बहुत कार्य शुरू हुआ है। वैयक्तिक उपासना पे हम आग्रह करते हैं, उपासना में लोग प्रतिष्ठित हो रहे हैं। उपासना तो फिर कायिक मानसिक वाचिक होती है। और सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृता। भगवद गीता में बताया है सर्वारंभा, आरंभा, सब काम, जिस अच्छा काम बुरा काम हम कहते हैं, बहुत ही एक अच्छा काम भले क्यों न हो, सर्वारंभा, सभी प्रकार के काम, अच्छे काम भी धूमेन अग्नि इव आवृता दोषेण। जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है तो वहां पे धुआं होगा ही, धुएं के कारण अग्नि ढक जाती है, तो उसको फिर से पुनः प्रज्वलित करना पड़े, ईंधन डालना पड़े या तो फिर हवा चलाएं। तो इसी प्रकार से हम अच्छा काम करते हैं फिर भी उसमें कुछ न कुछ दूषण होता ही है। इट एक्यूमुलेट्स और फिर जाके 24 साल में एक बार ब्रह्म कलश इत्यादि करके उस दोष को हटाना, प्रायश्चित रूप से परिहार मांगना, एक क्षमा याचना करना और एक अभिवृद्धि की वांछा प्रकट करना। 24 साल में हम बहुत कुछ कर चुके हैं, तो और आगे हमें बढ़ना है। तो अभी जो एक विघ्न बन के आए हैं, ये दूषण उन्हें हटाना है और भवानी शंकर भगवान का आशीर्वाद हम पे बना रहे और भी ओजस्वी काम वैयक्तिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पे हमारे हाथों से करवाना है भगवान। ऐसी प्रार्थना करके ये ब्रह्म कलश जो है इसकी आयोजना की जाती है। हमने इसका विचार नहीं किया था, वहां पे दृष्टांत हुआ, प्रश्न पे आया, तब जाके 1000 कलशों से अभिषेक की बात आई और फिर पता चला अरे ये तो संकेत आ रहा है ब्रह्म कलश करने की। तो वहीं से प्रेरणा मिली, हमारे गुरु का आशीर्वाद है, तो बहुत अच्छी तरह से ये करेंगे। ब्रह्म कलश कितने ही अर्थ में आप समझ सकते हैं। कलश एक पूर्णता का लक्षण है। जैसे कोई यति आता है या कोई वरेण्य आता है तो पूर्ण कलश एक प्रस्तुत किया जाता है, उसको छूते और फिर उनका आदर सत्कार पूर्वक अंदर घर में ले जाते हैं। ये प्रकट करने के लिए आप आए तो हमें खुशी से हमारा मन भर गया है। वैसे ही कला है, वहां पे कला संकोच करके उस जल पूर्ण गंगा जल इत्यादि से पूर्ण कलश में उस कला का आवाहन किया जाता है और फिर वहां पे जो शुद्धिकरण है या तो फिर कुछ जीर्णोद्धार करना है उस मंदिर में किया जाता है और उसके बाद पुनः ये कलश का जल उस पे अभिषेक करते हैं और फिर उस शिवलिंग में पुनः वो जीव कला आती है। इस प्रकार से कलश की एक महिमा है। सो ब्रह्म कलश यानी संपूर्ण देवस्थान झंकृत होने लगे उस शिव स्पंदन से। जो उसमें भाग ले उन साधकों को उतनी वैसी एक शुद्धि मिले, ओजस्विता प्राप्त हो, उनका पाप प्रक्षालन हो, इस ऐसे सब कार्य सिद्ध होने लगते हैं। इसलिए ब्रह्म कलश का बहुत महत्व है, इसमें भी भाग लें आप सहर्ष। ये कुछ गणना की गई थी, पता नहीं सारस्वत
तो संपत जी ने दिन में एक सेकेंड आप लोगों का स्मरण करने, तो how much does it come up to 365 days, about 6 minutes। साल में 6 बार आपका स्मरण करे तो हो जाएगा कल्याण आपका। ऐसे नहीं होता। संपर्क ये है, ठीक है, पर आना पड़े, धैर्य कीजिए। संबित साधक भी आए थे, है ना, आए थे और फिर क्या हुआ, बहुत अच्छा रहा। फिर परम पूज्य सोम स्वामी जी भी आए थे यहाँ पे, फिर सब मिले यहाँ पे, रात की गाड़ी थी उनकी, तो मिले, कैसे रहा। फिर एक उनमें से बोल बैठे, स्वामी जी वस्तु तो हाँ, यहाँ आने से पहले हमें बहुत डर था, 1 दिन 2 दिन तो फिर भी ठीक है, पर 7 दिन यहाँ पे रहना और यहाँ पे इडली डोसा मिले तो ये कैसे होगा। तो पता नहीं, स्वस्थ थे, मस्त थे सब जाते समय भी, तो कुछ अच्छी व्यवस्था हुई। बड़े प्रेम से संपर्क हो रहा है, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। उस प्रेम में परस्पर एक जो व्यक्तियों में जो हमें यहाँ पे दिखा, तो हम आश्वस्त हुए कि यहाँ पे बहुत ओजस्वी कार्य भी साध्य है। हमने ये भी बताया था, यदि हम आए जोधपुर हो या बीकानेर तो हमें तो अच्छा लगता ही है। क्यों? वहां की व्यवस्था करना आपकी जिम्मे है, आप बड़े प्रेम से करते हो, पर हम 25-30 वॉलंटियर्स को, स्वयं सेवक को लेके नहीं आ सकते, तो फिर वो एक अलग आनंद है। पर आप लोग 25, 50, 100, 200 लोग यहाँ पे आए, तो यहाँ पे भले ही 25 वॉलंटियर्स ही हों, पर आप लोगों को जो मिलना है वो बहुत शीघ्र यहाँ ऐसे स्थलों पे मिल सकता है। यहाँ का स्पंदन हो, और फिर यहाँ पे एक जो क्रम चल रहा है उसमें अनायास एक आदमी सीखने लगता है। सही बात संपत जी। इसीलिए वो संपर्क बनाए रखे, प्रत्यक्ष संपर्क का भी वो अनुरोध, जो आग्रह है उसको छोड़े नहीं। इस संपर्क के कारण उसमें कोई न्यूनता न आए। और फिर एक संपर्क होता है, वो प्रतिक्षण हो सकता है और प्रतिदिन भी हो सकता है, उस पे हमारा मेरा आग्रह रहता है, वो आपके अनुष्ठान, जप इत्यादि। सो सारस्वत कहते ही, सारस्वत अपने आप को कहलाते हैं, तो वो संस्कार समाज में दृढ़ करने हैं। पुरुष वर्ग को कम से कम गायत्री जप तो करना ही है, यदि हो सके तो फिर संध्या वंदन करे संक्षिप्त। उसमें जो एक ओजस्वता आती है वो उस व्यक्ति या उस कुटुंब के लिए ही नहीं, संपूर्ण समाज के लिए उपाधि सिद्ध होती है। गायत्री जप तो अनिवार्य है, और ऐसी चीजें जो हैं यदि न की जाए तो क्या होता है, दोष लगे। झूठ बोलने से जो एक दोष होता है, चोरी करने से एक दोष लगता है, पर गायत्री जप करना है, नहीं करने से कौन सा दोष, उसको प्रत्यवाय दोष कहते हैं। प्रत्यवाय ने जो काम करना चाहिए न करने से जो एक दोष उत्पन्न हुए उसे प्रत्यवाय दोष कहते हैं। धुंधलापन आने लगता है। गायत्री मंत्र में जो धियो यो न प्रचोदयात् प्रार्थना है भगवान से, वहां पे सूर्य की आराधना नहीं हो रही है, सूर्य के पीछे भी जो एक चैतन्य है, प्रकाशमय चैतन्य है, आलोकित करे, प्रकट करे इस सृष्टि को, सवित्र देवता, उसकी आराधना हो रही है। सवित्री एज द क्रिएटर, तो उसकी आराधना हो रही है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गः देवस्य धीमहि, हम ध्यान करते हैं उस तेज पे, उस भर्ग पे, भगवान के, जिससे वो सृष्टि कर रहा है। हमें थोड़ा सा संकेत मिला है, क्यों करते हैं उनका ध्यान, ताकि धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को जागृत करे, सतर्क करे। व्यवहार में हो, धर्म कार्य में हो, जहां पे भी हो, निर्णय लेने की शक्ति बुद्धि दे, निश्चयात्मिका बुद्धि। निर्णय लेने के उपरांत कार्य शुरू हो गया, अभी कोई विकल्प नहीं आना चाहिए, पर करें नहीं करें पता नहीं क्या होगा, इस प्रकार से भय, संकोच, ये भी हटाने वाला वो मंत्र है, इसीलिए उसकी आराधना होती है, तब जाके ओजस्वी कार्य हो सकता है। उतना करें तो फिर वो सारस्वत समाज कहलाए। ऐसे कुछ हैं बातें हमें दृढ़ करनी थी, इसीलिए ऐसे स्थान में आए तो अनायास जो है, अपरिचित है कोई व्यक्ति उपासना से, उपासना के क्रम से, फिर भी वो सहजतया उसको अपना ले, तो उस प्रकार का संपर्क हमें बढ़ाना है। बहुत कुछ कार्य करना है, जो कार्य हो रहा है उसको देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। जोधपुर जाना हुआ था,
तो हमारे रामकिशोर ओझा जी ने हमें कई जगह हमें ले गए। हमने कहा जोधपुर तो कई बार आना हुआ है, यहाँ के जो प्रधान देवस्थान है हम कई बार जा चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। तो कहाँ कहाँ ले गए। लव कुश वो संस्था है बच्चों के लिए, for the people, for the youngsters who have been abandoned. What a beautiful संस्था they have started there. And the girls who grow up, those infants, they have been discarded probably. They are brought here, they are taken care of. In the last 15-16 years, they have grown up, they have been married. तो वहाँ के जो पुलिस अध्यक्ष रहते हैं वो कन्यादान करें तो the future is assured. वहाँ पे बसेस देखी हमने। तो इस संस्था से बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में भेजा जाता है। तो एक संकोच सा हुआ, मैंने पूछा ये बच्चे वहाँ के हैं, ऐसे एक प्रकार की भावना, नीच भावना तो नहीं आती है मन में किसी की? ना, बड़े प्रेम से समाज उनको उन बच्चों को स्वीकारता है। ऐसी कुछ विलक्षण बातें हमने देखी। तो वो भी एक पुण्य क्षेत्र का ही एक क्या कह सकते हैं, एक विजिट वाज ओकेजन्ड बाय घनश्याम जी एंड रामकिशोर जी फॉर मी। वैसे ही वृद्धाश्रम वहाँ के देखे, बड़े प्रेम से कर रहे हैं वहाँ पे। ये एक समृद्ध जागृत समाज का लक्षण है, सारस्वत समाज का लक्षण है, इसीलिए हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। ऐसे कार्य करते समय संघर्ष तो होना ही है, तो उस संघर्ष को कैसे संभालना और उसमें डूबना भी नहीं और नहीं उससे हताश होके भाई मेरे से नहीं हो सकता, बहुत पॉलिटिक्स है, इस प्रकार से खिन्न होके न बैठना, उसको हम उपासना कहते हैं और उसको बढ़ाना हमारा परम कर्तव्य होता है। इसीलिए एक श्लोक शायद उसी पे चिंतन हम करें। इज इट वैलिड प्रवीण मैम? आई जनरली कंक्लूड द सभा कार्यक्रम विद दिस, नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरु सदा। कश्मीर के जो आचार्य हुए हैं जिन्होंने भगवती का, भगवान भवानी शंकर के दर्शन किए, आत्मसात हुए, ऐसे आचार्यों की के उद्गार हैं, स्तुति की, फिर उन्होंने एक प्रार्थना भी की, नंदन्तु साधका सर्वे, नंदन्तु प्रसन्न हो सभी साधक, विनश्यन्तु विदूषकाः, विनश्यति यानी नष्ट होता है, विनश्यन्तु यानी नष्ट हो, ये एक संकल्प है, आग्रह है। विदूषकाः विशेष दूषण करने वाली जो शक्तियां हैं वो नष्ट हो। अवस्था शाम्भवी में अस्तु, मेरी मानसिक अवस्था, एक आंतरिक अवस्था ये शाम्भवी हो और प्रसन्नोस्तु गुरु सदा, गुरु हमेशा मुझ पर प्रसन्न रहे। बस 4 बातें कहीं, पर इन 4 बातों को लेके हम अपने जीवन में ओजस्विता ला सकते हैं और विशेष करके जब भगवान की आराधना करते हैं और उससे भी गंभीर गुरु उपसक्ति करते हैं, यानी उस शक्ति को गुरु रूप से हम स्वीकारते हैं, तब जाके इन 4 बिंदुओं पे हमें विशेष चिंतन करने की आवश्यकता रहती है। बस गुरु मिल गए तो काम हो गया, बेड़ा पार हो गया, इस भावना से हमें बचे रहना चाहिए, क्योंकि ओजस्विता चाहिए। ये तो ठीक है संपत जी, पर हमें भी तो कुछ करना है ना, आप कर ही रहे हो, तो क्या करना है इस श्लोक में बताया गया है, इसीलिए हम हमेशा चिंतन करते हैं इस पे। नंदन्तु साधका सर्वे, एक साधक है जिसने भगवती का साक्षात्कार किया हो, उस आनंद में वो एक अभिव्यक्त कर रहा है, मैं प्रसन्न हूं तो सभी प्रसन्न हो। नंदन्तु साधका सर्वे, हम मिल के कर रहे हैं, यहाँ पे कंपटीशन की बात नहीं है क्योंकि वो मार्ग ही ऐसा है, वहां पे इतनी शुद्धि आने लगती है, मेरे पास कुछ अच्छा हो तो यही भावना आती है मैं दूसरों को भी दूं, दूसरों के पास भी हो, बस मेरे पास है तो बस मेरे पास ही रहे और देखो दूसरे मेरा पुरस्कार करें, इस प्रकार की भावना आ ही नहीं सकती जब हम गुरु की उपसक्ति करते हैं। इसीलिए वो सहज है, नंदन्तु साधका सर्वे, सभी साधक प्रसन्न। और साधक कब प्रसन्न होंगे?
कई कारण हो सकते हैं, पर यहाँ पे साधक होने से प्रत्येक साधक की जब साधना में गति होने लगती है, मन शांत होने लगता है, आत्मबल प्रगत एक प्रकार का उसमें एक परिष्कार आने लगता है, व्यक्त होने लगता है, तब हम कह सकते हैं साधक आनंदित हो रहा है। सनंदन तो साधका सर्वे और विनश्यन्तु विदूषका, इसमें भी ध्यान रखना है। विदूषक, विदूषक शब्द कहते ही क्या अर्थ निकलता है? प्राय जो नाटक में होता है ना, वो क्लाउन जो मजाक करे वगैरह, राजाओं के दरबार में भी रहा करता था एक विदूषक, जो और कोई नहीं कह पाए पर राजा को समझाना है तो विदूषक बस बता दे कुछ, just joke, clown around, and the king gets to know, oh, this is something I need to attend to, and others were too frightened to tell me. ऐसे भी विदूषक भी रहते हैं जब भी क्लाउनिंग अराउंड। पर यहाँ पे ये विदूषक नाम का शब्द जो है उसका जरा विश्लेषण करें। दूषण करने वाली शक्तियां, विशेष दूषण करने वाली शक्तियां जो है उसको विदूषक कहते हैं। वो आंतरिक भी रह सकती हैं, बाह्य भी रह सकती हैं, सामाजिक भी रह सकती हैं। तो वैसी जो शक्तियां हैं वो उनका नाश हो। अपने आप में वो शक्तियां हैं, अच्छी शक्तियां हैं, संकल्प किया मैं जब करूंगा कल सुबह उठ के, पर सुबह उठने के बाद तर्क शुरू होने लगता है, देखो अभी तो 5 बजे हैं, शायद 5:15 को बैठूं, या तो फिर कल से शुरू करूं, या तो फिर बहुत एक अच्छा दिन देख के ही शुरू करूं। ये सारी जो ये विचार जो आते हैं ये उसको विदूषण कहते हैं। संकल्प लिया है, वचन दिया है, उसी के अनुसार कर लो भाई, अभी तर्क क्यों, पर उस अवस्था में तर्क होने लगता है। ये दूषण करने वाली शक्तियां, समझ गए, बहुत ही सरल बात है। तो वो विनश्यन्तु, उनसे हमें कोई न लेना न देना, उनका नाश हो और मैंने जो संकल्प किया था उसी के अनुसार मैं बैठ के अपना अनुष्ठान कर पाऊं। फिर देखते हैं हम समाज में भी रहता है, अच्छा कार्य चल रहा हो, कुछ लोग हैं सहन नहीं होता, फिर वो शुरू करते हैं, भाई ये ठीक है पर शायद ये ऐसे नहीं करते तो अच्छा था, इसको विदूषण कहते हैं। आपाततः स्पष्टतया वो दूषण जैसे नहीं लगता, पर जो अच्छा कार्य हो रहा हो उसमें फिर एक स्थगित होने लगता है, मन में संशय आने लगता है, इसको विदूषण कहते हैं। सो ऐसी जो शक्तियां हैं जो स्पष्टतया दुष्ट जैसी नहीं दिखाई देती पर अंदर अंदर वो खोखला कर देती है एक समाज को या व्यक्ति को, ऐसी शक्तियों का नाश हो। ये संकल्प कौन कर रहा है? आचार्य ने किया था, हम भी कर रहे हैं, प्रत्येक साधक करता है। नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका। फिर वही बात आई, यदि सचमुच प्रयास करना हो तो एक संघर्ष होने वाला ही है। तो उस संघर्ष में बस बहुत एक रोष बताएं और क्या करें, करना ही पड़े, ऐसे बोलना ही पड़े करके एक हठपूर्वक साधक आगे बढ़ना चाहे तो फिर उसकी साधना रुकने लगती है। वहां पर फिर सौम्यता लाना, सहन शक्ति बढ़ाना, ये सारा उसका कार्य रहता है। इसीलिए तीसरी प्रार्थना आई, अवस्था शांभवी में अस्तु, मेरी मानसिक अवस्था हमेशा शांभवी, शंभु जैसे शांत बनी रहे। द्वंद्व आते रहेगा, अच्छा बुरा, सुख दुख, कभी यश मिले कभी अपयश मिले, उन दोनों से मुझे उभर के आगे बढ़ना है, इन दोनों में मुझे अटकना नहीं है, इन द्वंद्वों में, तब जाके मेरे हाथों से ओजस्वी कार्य होगा, मैं सच्चा निमित्त बनूंगा। इसीलिए मानसिक अवस्था, मेरा मन का जो संतुलन है वो उमंग से भरा रहे, एक शांत रहे, ताकि जो प्रेरणा आए भगवान से उसको लेके मैं आगे कार्य करता रहूं। खिन्न हूं या तो फिर आग्रह मेरा बढ़े तो फिर कार्य बंद होने लगे। इसीलिए तीसरी प्रार्थना ही है, अवस्था शांभवी में अस्तु। और ये इसमें सब कर रहा हूँ, अच्छे कार्य को बढ़ा रहा हूँ, दुष्ट कार्य हो उसका शमन कर रहा हूँ, मन को शांत रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो फिर कोई मीटर है, कोई एक संकेत है कि मैं सही कार्य कर रहा हूँ। प्रसन्नोस्तु गुरु सदा, गुरु की जो प्रसन्नता है बस वो एक झलक सी मिले मुझे तो मुझे पता चलता है हाँ मैं सही कार्य कर रहा हूँ। दृष्टांत की दृष्टि से एक छोटा सा बच्चा है, 2 साल का है, खूब कुछ मजाक कर रहा है, वहां पे खेल रहा है, तो परिवार के सदस्य हो या तो और कोई आए, अतिथि आए हैं, बहुत ही प्रसन्न है उस बच्चे की कला को देख के। बच्चा बस अपनी ही कला में मग्न है, कुछ कर रहा है, अचानक ऊपर देखता है और देखता है 5-6 लोग उसको देख रहे हैं।
बड़ी प्रसन्नता से देख रहा है, बहुत खुश होकर देख रहा है, पर अचानक वो देखता है बाप रे इतने लोग मुझे देख रहे हैं, झेप जाए, बंद हो गया। गा रहा था, बस नहीं गाऊंगा। फिर जाके उसकी दृष्टि अपने माँ पे, माँ बस एक संकेत कर दी, ठीक है, बस पुलकित हो जाता है और फिर करने लगता है। माँ का अनुमोदन मिला, फिर वो आत्मविश्वास जागृत हो गया और वैसे ही निश्चिंत निसंकोच वो जो खेल रहा था वो आगे बढ़ाता है। उसको हम गुरु की प्रसन्नता कहते हैं। जैसे संपर्क बढ़ता है, जैसे घनिष्ठता बढ़ती है, जैसे गुरु शक्ति का सानिध्य मिलने लगता है, तब जाके उनका मार्गदर्शन मिले, उस शक्ति का। और ईश्वर की हम जब आराधना करते हैं तो प्राय ऐसे ही रहता है, इतना हमने भोग चढ़ाया, इतना बड़ा वो कार्यक्रम किया, अब भगवान मुझे जो चाहिए तू दे दे, बस यहाँ पे खत्म हो जाती है बात। और जब हम कहते हैं भगवान तू ही बता मेरे लिए क्या अच्छा है और तू मुझे प्राप्त करवा दे, उसके लिए मैं साधना करने के लिए तैयार हूं, तब वो ईश्वरीय शक्ति नहीं, वो गुरु शक्ति बन जाती है। इतना हम समझ लें तो फिर हम जो मिलके कर रहे हैं उसमें एक आनंद भी आने लगेगा, सहजता आने लगेगी। तो इस मार्गदर्शन की बात मैंने शुरू की, मल्लापुर में वो प्रेरणा मिली, तो अब उसको आगे लेके बढ़ना है, बढ़ानी है हमारे अपनी अपनी साधना। तो उस आनंद को अनुभव करते समय उस प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता की एक झलक मिले, ये हमारी एक आर्त प्रार्थना बनी रहती है। इतना कर चुका हूं मैं, इतना हम कर चुके हैं, वो विफल नहीं होना चाहिए। विघ्न आएंगे तो हटा दीजिएगा। हमने कार्य करने में ही जो विघ्न शायद उत्पन्न किए हैं, जैसे अग्नि हो तो धुआं होता ही है, उस म्लानता को, उस थकावट को या तो एक कर्कशता को, उसको भी हटा दीजिएगा। सूक्ष्म स्तर पे, दिव्य स्तर पे, देवताओं के स्तर पे, दैवों के स्तर पे भी विघ्न आते हैं, दूषण हुआ रहता है, वो भी सब हट जाए। जो बाधा है, जिस कारण से हमें शिव दर्शन हो नहीं सकता, हमारा आत्म होते हुए उसका दर्शन नहीं हो सकता, उन सारी बाधाओं को निकालो। इस प्रकार से एक प्रार्थना करके ब्रह्म कलश का जो है आयोजित किया गया है। तो साल भर क्यों ना अच्छी तरह से हम काम करें। कोविड सिचुएशन से हम अभी धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, तो ऐसी एक संगठन को बनाए रखते और बढ़ाते हुए अपनी वैयक्तिक साधना हो या तो फिर सामाजिक हो, उसको बढ़ाएं, बड़े प्रेम से बढ़ाएं। अवस्था शांभवी मेस्तु, ये प्रार्थना हमेशा बनी रहे। कार्य के बाहुल्य के कारण, संघर्ष के कारण मन को खिन्न होने देना या तो फिर उत्तेजित होने देना एक क्षण के लिए हो सकता है, पुनः शांत करना, ये प्रेरणा हमें कहाँ से मिल सकती है? समाज तो नहीं सिखाएगी। यदि हमें एक ध्यान रहे कि वो गुरु शक्ति निरीक्षण कर रही है तो हम सचेत हो सकते हैं। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, इतने क्रुद्ध होने की भी आवश्यकता नहीं। शांत हूं और फिर आगे क्या, मैं क्या करूं, उस प्रेरणा के लिए भी प्रार्थना करूं, तब जाके मेरे हाथों से जो कार्य होगा सचमुच ओजस्वी कार्य होगा, सचमुच विलक्षण कार्य होगा, सामान्य कार्य कभी नहीं होगा। इतना किया फिर और किया तो ठीक है, पैसा बढ़ाते गया एक आदमी ना, there will be some novelty to whatever you do, individually and collectively। उस चमत्कार को हम चाहते हैं अपने प्रत्येक कार्य में, इसलिए यह प्रार्थना रहती है, अवस्था शांभवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरु सदा। केवल दो नहीं लेना, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं शांत रहूंगा और गुरु मेरे पे प्रसन्न रहे, ऐसी भी भावना हमें नहीं चाहिए। मैं संघर्ष करूंगा, अच्छा बढ़ाऊंगा, बुरा जो है उसका शमन करने का प्रयत्न करूंगा, इसमें इस संघर्ष में मन को शांत बनाने का प्रयत्न करूंगा। यानी क्या, योग में आरूढ़ हूंगा, योग आरूढ़ में बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ गुरु सेवा करते हुए, तब जाके गुरु की प्रसन्नता हमें मिलने लगती है। और वो प्रायः संकेत जब ध्यान या जप कर रहे होते हो तभी स्पष्टतया मिलती है, झलक मिल सकती है, और किसी मुखांतर कहते हैं, और किसी से एक प्रेरणा मिल सकती है। पर जब हम अभ्यस्त हुए हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठ के संध्या वंदन हो, मंत्र दीक्षा लिए हुए उसे जप करने में, तब जाके मन एक क्षण के लिए शांत होता है और स्पष्टतया गुरु का आदेश जो है हमें मिलने लगता है। उसके लिए हम लालायित होते हैं।
वो एक चीज है जो इस हमारे संसार के परे से आ रही है, पर इतनी आत्मीयता से आ रही है। गुरु का संकेत, अरे तू तो मेरा ही है, तू इस संसार के परे है, ये जो तू देख रहा है ये सब मेरा ही है। इस प्रकार का जो संकेत मिलने लगे, तब जाके आत्मबल बढ़े। हमें ये चाहिए, और तो कोई आश्वासन से कोई मतलब नहीं। बस तुझे इतना पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, व्हाट अबाउट हेल्थ? हेल्थ है, फिर मेरे लोग यही मेरे दुश्मन बन के बैठे। ऐसी समस्याएं चलते रहती हैं संसार में। इससे परे यानी और किसी लोक में जाके नहीं, यहीं पे हमें चाहिए। इसीलिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं, तब जाके जीवन में ओजस्विता आती है। प्रेम से करें, परस्पर मिलके करें, तो बहुत सीखने में मिलता है ना। जो सिखा रहा हो उसको भी सीखने में मिलता है। You teach best what you need to learn most, कहते हैं ना। It's very very necessary। तो बहुत बहुत विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां सी हो सकती है, रहना खान पान का वगैरह, पर जब मिलते हैं एक लक्ष्य को लेके तो कितना प्रेम उमड़ आए, कितनी सहजता आए, और तब जाके देयर इज अ रिचनेस टू दिस कल्चर। वो समझ में आती है बात, एक समृद्धि है हमारे राष्ट्र की, जो एक संस्कृति है उसमें। ये धीरे धीरे पता चलता है हमें, कूप मंडूक नहीं होके बैठते हैं। और इस सब में अनुस्यूत जो है, बस उस गुरु शक्ति का आवाहन और आत्मसात करना, ये प्रयत्न चलता रहता है। सामाजिक स्तर पे तो बहुत ही विलक्षण कार्य हो रहा है, जिसे मैंने उल्लेख किया था, इसको भी लेके करना है। एजुकेशन के स्तर पे भी हमें बहुत करना है। समाज को हर एक स्तर पे, प्रत्येक स्तर पे समृद्ध करना है, संगठित करना है। पर करने वाला जो है, may he not become a victim, उसका भी लाभ होना चाहिए। तो इन 4 बिंदुओं पे हमेशा ध्यान रखें। नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शांभवी मेस्तु, मेरे में भी एक गरिमा आए, मेरे में भी एक प्रौढ़ता आए, ताकि मैं और भी सूक्ष्म सूक्ष्म संकेतों को समझ सकूं। और हमेशा मे आई बी अलर्ट टू दिस, अनुमोदन गुरु का और प्रसन्नता उस गुरु शक्ति का इतना बना रहे तो सचमुच सारस्वत समाज कहलाएगा। सरस्वती से अनुग्रहित समाज, एक आदर्श समाज। और क्या बताएं आपको? कुछ पूछना था, कुछ बताना था? रामकिशोर जी। अब ये कुछ धीरे धीरे प्लान कीजिएगा शिराली भी आने का। अवश्य अवश्य। हाँ गुरुजी, जी, हाँ जी। संपत जी आप भी देखिए, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? लॉकडाउन हैपनिंग नाउ। चैतन्य, डॉक्टर मैम, हाउ इज द सिचुएशन? थोड़ा सा बढ़ गया है अब, संख्या बढ़ रही है। महाराष्ट्र के, हाँ, पर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, वैक्सीन भी उपलब्ध करवा रही है सरकार। यहाँ पे देखिए, जो आए मठ में, अभी शिराली मठ में 60 साल की उम्र से कम जिसकी उम्र हो, उसको जबरदस्ती 2 घंटा व्यायाम प्राणायाम करना पड़ता है। शायद इसी कारण से आना जाना कम हो रहा हो सकता है, पता नहीं, पर आवश्यकता है और उससे बहुत लाभ भी हो रहा है। हम एक बहुत ही अनिवार्य अंग को भूल चुके हैं और उससे समाज पीड़ित हो रहा है। आप ही देखिए, बच्चों को संस्कार देते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। एक नेक पिता हो तो कह सकता है, मैंने झूठ बोल के गलतियां की हैं, उसका मुझे पश्चाताप है, पर मैं अपने बच्चे को सिखाऊंगा अपने ही लोगों से, अपने ही मित्रों से व्यवहार करते समय झूठ न बोले, सत्यम वद उपदेश देगा। ऐसे कई हैं, सत्यम वद धर्मम चर। पर कितने सारस्वत परिवार हैं जहाँ एक उपदेश दिया जाता है, सुबह उठ के थोड़ा व्यायाम करना, प्राणायाम करना। वो संस्कार नहीं दिए जाते हैं और उसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। इसीलिए वहां से, उस स्तर से हमें अपनी संस्कृति का जागरण करना पड़ेगा। 24 साल का लड़का है पर उसके कंप्लेंट्स देखे तो ये तो 40 साल का, 45 साल का है, ये डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये क्या हो रहा है?
तो केवल जप करने से कुछ नहीं होने वाला, और एंजाइटी, स्ट्रेस। तो व्यायाम अनिवार्य, जो प्राणायाम है इसको बनाना करना ही है, और ऐसे संस्कार समाज में जागृत होने चाहिए। डू रिमेम्बर दिलीप मैम, प्रवीण मैम, say about 30 years ago, 20 years ago, generally we had people in the Saraswat Samaj, oh, he's a cricketer, he's a sportsman, but he exercises daily is not something I remember having heard. It was never there. You lost that. Now because of TV and do this and all, we are getting some sanskara, that is okay, but actually implementation, है ना? तो ये भी संस्कार आने चाहिए। कोई बुजुर्ग हो कहे झूठ बोला, ऐसे डांटे, आज व्यायाम नहीं किया, ऐसा कौन सा बुजुर्ग है सारस्वत समाज में जो याद दिलाए बच्चों को? तो जब वो उस स्तर पे एक शारीरिक भी दौर्बल्य हो तो फिर नाड़ी की शुद्धि नहीं होती, फिर थोड़ा सा भी कुछ हो तो फिर वो भय उत्पन्न होता है, आगे बढ़ नहीं सकता व्यक्ति। इसीलिए स्टार्ट विद रेगुलर एक्सरसाइज। प्राणायाम के 2-3 अंश है, कपालभाति, भस्त्रिका, कुंभक करना, बस 7 मिनट 8 मिनट में वो सिद्ध हो सकता है। उससे इतना बल हो बढ़े, और वो संकल्प बनाए रखने में आपका जप वगैरह है वो भी ठीक से होने लगेगा। फिर जाके आपको एक बेस मिलता है, और फिर जाके आपके दैनंदिन कार्य में भी एक ओजस्विता आने लगती है, जीवन सुखमय होने लगता है और प्रेरणाएं आने लगती हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो भी यहाँ पे हो रहा है, इसलिए बहुत प्रसन्नता होती है। और आप लोगों को क्या बताना? Anything else that I need to know, Praveen ma'am? स्वामी जी, I think रामकिशोर जी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्होंने हाथ ऊपर किया है। नहीं? हाँ। अच्छा, आपका वो जो साइन था वो प्रश्न का साइन था। कुछ हो तो बताइए। नहीं, मैं तो आपसे यही निवेदन करने चाह रहा था, अभी कोरोना काल में जोधपुर सारस्वत समाज ने बहुत कार्य किए हैं। रोज 800 से 1000 पैकेट भोजन का वितरण कच्ची बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में जाके, जहां पर लोगों को भोजन नहीं मिल रहा था, जोधपुर समाज ने बहुत बड़ा कार्य किया। उसके अलावा भी किसी के घर में राशन पहुंचाना हो, राशन सामग्री देनी हो, तो भी निःशुल्क राशन सामग्री भी उपलब्ध कराए थे। ऐसे समाज के वॉलंटियर मिलके, और हम लोग साथ में जाते थे, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, दूर दराज ढाणियों में जाके हम ये देखकर आते थे। ये कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ आपके आशीर्वाद से, और अभी भी कुछ न कुछ कार्य निरंतर चल रहा है। बहुत अच्छा, ये सुन के प्रसन्नता ही नहीं, बहुत एक स्वाभिमान का अनुभव हो रहा है। सारस्वत समाज में ऐसा कार्य चल रहा है, एक प्रेरणास्पद है यह जो कार्य चल रहा है। इसी से संपूर्ण समाज जो है ओजस्वी बने, ये प्रेरणा प्राप्त करके। ऐसी प्रार्थना हम करते हैं गुरु चरणों में। अब एक भजन करना है। कोरियद्वय श्री जगदम्बे सरस्वती, ठीक है। श्री जगदम्बे सरस्वती संवित् स्वरूपिणी पालय माम्। श्री जगदम्बे सरस्वती संवित् स्वरूपिणी पालय माम्। वीणावादिनी सरस्वती वेदविलासिनी पालय माम्। विद्यादायिनी सरस्वती विनयस्वरूपिणी पालय माम्। श्री जगदम्बे सरस्वती संवित् स्वरूपिणी पालय माम्। पालय माम्, मेरा रक्षण कर हे भगवती सरस्वती, ज्ञान स्वरूपिणी हो,
संवित स्वरूपिणी हो। ये कोई जड़ ज्ञान नहीं है, स्फुरण देने वाला ज्ञान है, उसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हंसवाहिनी सरस्वती, हंसवाहिनी सरस्वती, हृदय विकासिनी पालय माम्। स्फाटिकमालिनी सरस्वती, सत्त्वस्वरूपिणी पालय माम्। श्रीजगदम्बे सरस्वती, संवित्स्वरूपिणी पालय माम्। अपार करुणे सरस्वती, अमृतवर्षिणी पालय माम्। अपार करुणे सरस्वती, अमृतवर्षिणी पालय माम्। अचिन्त्य शक्ते सरस्वती, अक्षर रूपिणी पालय माम्। अचिन्त्य शक्ते सरस्वती, अक्षर रूपिणी पालय माम्। श्री जगदम्बे सरस्वती, संवित् स्वरूपिणी पालय माम्। भगवती देवी सरस्वती, ब्रह्मार्धांगिनी पालय माम्। भगवती देवी सरस्वती, ब्रह्मार्धांगिनी पालय माम्। पाप विनाशिनी सरस्वती, प्रज्ञारूपिणी पालय माम्। पाप विनाशिनी सरस्वती, प्रज्ञारूपिणी पालय माम्। श्री जगदम्बे सरस्वती, संवित् स्वरूपिणी पालय माम्। श्री जगदम्बे सरस्वती, संवित् स्वरूपिणी पालय माम्। सरस्वती है वेदों में पूजित, आराधित, स्तुत्य सरस्वती। उससे प्रार्थना की। ज्ञान स्वरूपिणी है, ज्ञान प्रदान करे। ये तो संस्कार बच्चों को हम देते ही हैं। अध्ययन से पूर्व गणेश की आराधना करना, सरस्वती से प्रार्थना करो, अच्छे मार्क मिले। पर उतने में सीमित थोड़ी ना है सरस्वती। ब्रह्मार्धांगिनी, वो सृष्टि स्थिति लय करने वाली प्रचंड शक्ति है। वही हमें मोहित भी कर सकती है, वो हमें जागृत भी कर सकती है। इसलिए वो ब्रह्म स्वरूपिणी, संवित् स्वरूपिणी सरस्वती से यहाँ पे आराधना है, प्रार्थना की जा रही है। प्रत्येक स्तर पे मेरा जागरण हो, तेरा अनुग्रह मुझे प्राप्त हो। वाणी ही कहें तो वाणी के जो 4 स्तर हैं उनमें मैं तेरा अनुसंधान कर पाऊं, तेरा अनुग्रह मुझे प्राप्त हो। इसीलिए प्रायः जप करने के पूर्व
कुछ शिव कवच का पाठ इत्यादि करके देवी कवच का पाठ हम उच्चारण उसका करते हैं। वहां पे श्वास और प्रश्वास की जो प्रक्रिया है वो संतुलित होने लगती है। फिर उच्चारण कम करके उस प्रक्रिया को हम बनाए रखते हैं। लिटिल टक्ड इन, जैसे यहाँ पे अभी श्रुति पेटी है, ये स्वर चल रहा है। चाहे तो मैं ऐसे उच्चारण कर सकता हूँ। या तो हमने जो स्वीकार किया है तीन बीजाक्षरों का उच्चारण, श्री गुरुभ्यो नमः, ऐसा उच्चारण कवच पाठ हुआ। और वाणी को विराम देने से पहले श्वास प्रश्वास पे नियंत्रण रखते हुए उस नाद पे अनुसंधान, बीजाक्षरों का उच्चारण, जिससे सुप्त जो शक्तियां जागृत हो रही हैं, भगवती की आराधना हो रही है, उसका अनुग्रह प्राप्त हो रहा हो। फिर भी श्री इस प्लुत दीर्घ उच्चारण से एक संतुलन आने लगता है। मानसिक भावनात्मक स्तर पे भी एक संतुलन आने लगता है। मन शांत होता है, या तो पुलकित भी हो सकता है, उस आनंद से आनंद विभोर हो सकता है, अगाध आनंद का अनुभव करेगा। उस अवस्था में हम अपना मानसिक जप प्रारंभ करते हैं। कभी खिन्न होके जप प्रारंभ नहीं करना चाहिए। मन को जागृत करके फिर जाके अंतर्मुख होना अनिवार्य है। खिन्न हो, विक्षिप्त मन हो, जबरदस्ती मन को जप में लगाने का प्रयत्न करें तो मन विक्षिप्त हो जाएगा या तो दुखी हो जाएगा। मन को संतुलन देते हुए गुरु स्मरण पूर्वक फिर जाके हम अपना आत्मानुसंधान या तो मंत्र जप प्रारंभ करते हैं। 2 क्षणों के लिए ऐसे करें। इसी प्रार्थना से सरस्वती से, तुम तो हंस वाहिनी हो, सुंदर हंस पे तुम आती हो, भक्तों को दर्शन देती हो, आराधना वैसे होती है। मेरे इस शरीर में ये जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है सहज चल रही है, इसमें मैं कुछ संतुलन लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अब तो प्रसन्न होकर इस हंस को, यानी मेरे श्वास प्रश्वास को ही अपना वाहन बना के मेरे हृदय में विराजमती होना, मेरी बुद्धि को प्रचोदन देना और मेरे से अलौकिक कार्य करवाना। हे देवी, ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी मैं कार्य करने आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, समाहित होकर जप करने का संकल्प लेके बैठा हुआ हूँ। इसीलिए श्री गुरुभ्यो नमः।
नीयातिगुह्योक्त्रीत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। भवानी शंकर मम शरणम्, भवानी शंकर मम शरणम्, भवानी शंकर मम शरणम्। आगे माक्षी कोण कार्य करतस शर्मिलस शांतीशु मस्त खुशी जाली, तुम्ही मस्त प्रयत्न करून है सज्ज केलाय और जो कार्यकर्ता हैं वो कभी सामने नहीं आते, उनका नाम भी लोग नहीं जानते, पर लगातार स्वयं सेवक कार्य कर रहे हैं। उन पे भगवती का अनुग्रह बना रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप इस कार्यक्रम में संपर्क में जो सम्मिलित हुए, आपको आपके जीवन में एक सुख शांति समृद्धि यश प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। गुरु चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ, हम सबों का लक्ष्य विभिन्न कार्य कर रहे हैं, सबों का लक्ष्य एक बना रहे, सामाजिक तौर पे संगठित रहना, ओजस्वी कार्य करना और एक आध्यात्मिक एक लक्ष्य बना रहे, भगवत चरणों में मन बना रहे, भगवत साक्षात्कार हो। कार्य करते समय या प्रशांत बैठते हुए समय भी हमेशा एक अनुसंधान बना रहे, सानिध्य का अनुभव हो, ताकि सचमुच सरस्वती का पूर्ण वरदान हम सबों को प्राप्त हो, ऐसी हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। गुरु चरणों में आप सबों की ओर से बहुत प्रसन्नता हुई, अवश्य मिलना होगा, संपर्क बनाए रखें। देखिए, कुछ दिन पूर्व पिछले मास 4-6 तरु आए थे जोधपुर से, तो ये नहीं कहना कोई नहीं आ सकता यहाँ पे। एक सप्ताह भर रुके, सब कार्यक्रमों में भाग लिए, संबित तरु। सो प्रयत्न कीजिएगा, जब अनुमति मिले सरकार से अवश्य आने की यहाँ पे, और अपने अपने क्षेत्र में जहाँ तक कि साध्य हो सत्संग बनाए रखें, चिंतन अच्छा हो, नहीं तो लौकिक चिंतन मात्र से एक जीवन में कर्कशता आती है, फिर केवल अहंकार को लेके ही काम करना पड़ता है। ऐसी कोई किसी की परिस्थिति न हो, एक आत्म बल से, एक आत्म उमंग से कार्य होने लगे सारस्वतों के हाथों से, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं गुरु चरणों में। ओम नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।